we will get the nutrition from that vegetable by using this our cookware kit also. And then also towards business, if I want to go, then I want to suggest one more thing, that while joining our business, we used to say you all that please prepare two lists. That is for one for say prospect, business prospect, and another for say for the customers. We select that way that we will promote products to the customers, and we will promote our product and a business plan to some distributors. But that distributors and our consumers all together, all are our customers, we can say, because the distributors will also have to use, because our if we say about our business in direct selling, first what happens, if anyone purchases our products, he have to first he have to self use, then after that, after he feels, then only he will share, so he have to use self. But in practically, if we see, we maximum we used to promote products to only to customers, but to the business prospect, we used to say about only the business plan. We just give them the product. We say them that you joined in One Diamond in with 6,000 or 6,500 rupees. You collect some products, and after that you go to do your business with our business plan. But we don't focus mainly on products. But for the customers, we are giving products, but we are taking reports, and we are sending to head office also. We are sending to doctors are also, and they are recommending, and we are giving the products. But we have to give concentration to the this one also, to the leaders also, distributors also. So this way we can make the awareness among the customers as well as the new distributors which are also joining, and that they can also promote our products. And I think Dr. Sir is already with us. So sir, I am passing to you, sir. Yes, good morning, Anjal. Thank you so much Thank you, sir. for the valuable talk. I mean, you said very right. I fully agree with this, that most of the times we are promoting the business to our business prospect, but with what they will do the business. So business करेंगे तो किस चीज से business करेंगे? Product से तो करेंगे, health concept से तो करेंगे. That's the time many times people in wellness industry, I mean in direct selling wellness industry, network marketing industry, many companies. You can take some many big companies names also in India and small companies names in India. I know many leaders in different companies. I see that's the strategy which is very wrong. You ask about human body to many leaders who are working 10 years in network marketing. They don't know anything about human body. You ask about insulin. They don't know what is insulin. They only heard insulin is for diabetes related problem. You ask about, I mean, lung structure. They don't know. You ask about neuro system. They don't know. But our audience leaders, we are always giving the best knowledge. We are not always talking about the product. We are not always talking about our business plan. We are not always telling you, you sell our product and you sell our business plan. No, we're not saying like that. What we want is to get you the good knowledge, the right knowledge, because the right knowledge is going to sell. If you remember, many times I told you, are you all comfortable in English, or I will sometimes mix in Hindi? Because I have to speak I mean, it's in English as you have seen in the poster, but I have to use the language which mass of the people understand. आप English में सुनना comfortable feel कर रहे हैं, मैं हिंदी में कभी-कभी बीच-बीच में बोलूँ या only English में बोलूँ, आप क्या comfortable feel करेंगे? Because अगर majority of people purely English मेरा बोलने से not in comfort है, तो I will also mix up Hindi sometimes. So you can write me here, because our main intention is that every one of you should get the benefit. आप सबको benefit मिले. So language is not a problem. So it's okay, sir. However, both okay. Okay. Not only Hindi में तो आज नहीं हो पाएगा, English तो होगा ही होगा, उसके साथ Hindi as addition होगा, right? बीच-बीच में, so that everybody understands. English only, I can't understand Hindi. Okay. Mixed, sir. Okay, mixed, sir. Okay, good. Chalo, mixed. We'll mix it up sometimes. So English wala will always understand the English thing, and Hindi people will understand the Hindi thing. These two languages I can mix up and tell. See, most of the times what happens is that I told you is that KDAC. Last two lectures I was telling you constantly KDAC. KDAC में बार-बार आप लोगों को सिखा रहा था, knowledge driven attention creation. What is the meaning of knowledge driven attention creation? Is that by the power of your knowledge,
you will create attention of people. लोग आपको देखेंगे, सुनेंगे, ओ इन सर से, इन मैडम से कुछ जानकारी मिलेगा. Something I'm going to learn good, something I'm going to get benefit in my life being with him. It doesn't matter which product he is in, doesn't matter which plan he is in, doesn't matter which company he is in, doesn't matter which position he is in, but he is the person I want to be with. She is the person I want to be with in my professional life in network marketing. That is called KDAC, knowledge driven attention creation. It means the person's values, knowledge, philosophy, and his strategies, methodology is the selling point. So whatever product goes, it goes with that. So if you're going to, today we're going to study anatomy and physiology in brief. So if you're talking about heart to some people, I mean, 10 people are sitting with you and we started a topic about heart, about the heart disease, about heart's anatomy. You're not going to explain like a doctor, but about heart's anatomy, what is heart, how the heart works, what are heart diseases, what is the reason of heart diseases. You will see out of 10 people, 5 will tell, I have this problem, I have this problem. Out of those 5, 2 will buy products. It means it doesn't actually, really doesn't actually matter. You didn't want to sell the product, but actually your knowledge made the sales. So I always say that all the time my directors tell that doctor, give the best knowledge to people. Product knowledge, of course, they are having, but give the best knowledge to people. Always Karthikeyan sir tells me, CEO sir always tells me that give the best knowledge to them, so that people will have the knowledge. If they talk about it in the market, in public, public will be attracted. Oh yeah, okay, so much they know. Audience people know so much. Okay, audience people know about human body. Audience people know about diseases. Not they are not only simple networkers like other networkers. दोनों नेटवर्क, एक मूर्खों का नेटवर्क, एक ज्ञानियों का नेटवर्क. ज्ञानियों के नेटवर्क में बहुत पावर होता है, क्योंकि ज्ञानियों के पास ज्ञान लेने सब आ जाते हैं. मूर्खों से सब लोग दूर जाते हैं और ज्ञानियों के सब पास जाते हैं. सो इफ यू, अगर आप ज्ञानियों का नेटवर्क बन जाते हैं, खुद एज ए लीडर आपके नीचे और आपके ऊपर ज्ञानियों का नेटवर्क बनता है, automatically the business will come up because people will be attracted. It's a people's business, right? The people is the product is for the people. Automatically they'll be attracted. So आज का topic है anatomy and physiology, and we have some slides. मैंने Telegram में भी डाला था. I told you follow my Telegram channel. Also Anjan sir, I have sent him. He's made some slides. So Anjan sir is going to start sharing. Yeah, thank you, Anjan sir. Can you zoom it, sir? Yeah, I have zoomed it. So dear leaders, just have a look. Later, I'm going to explain it verbally, but just have a look at the images. Mainly, I have put the images of the organs, which are the most visceral organs. What is the meaning of the most visceral organs? Which are actually the most crucial and critical, and where the damages takes place at the highest ratio. In every organ, damages will take place. But in this particular organs, as you can see in the image, the damages is in the highest ratio. So you can see we have the heart, then we have the intestine, the kidney, the blood system, neurosystem, brain, female, you can see the uterus and the ovary picture, skeletal system. So all these systems actually called the visceral organs. Why we say the word visceral organs? You can take a snapshot of your, so you can take the snapshot and keep here. Again, I repeat, you can see the organs which are here, which we put in the picture: the heart, intestine, and stomach and intestine, that is the digestive tract, the blood circulatory system, kidneys, skeletal system, female reproductive system, neuro system. About our brain, that is on the extreme left on the upper side, our brain. So all this sort of systems we call the visceral system. There is other visceral system also in one image. It's not really possible to bring. Whatever I could bring in one image, I brought. All these visceral systems in the sense means that these systems are highly critical and we cannot exist without them. We cannot survive without them. So that is why they are called the visceral organs. That you cannot be surviving without your kidneys. Then you will be in a kidney transplant or dialysis for the rest of the life. You cannot be surviving without your heart, without your liver, without your uterus and ovary, both, without the whole reproductive organ. Females will survive, but survive very badly. So many diseases can happen. If you have a bad neurology, you can have a attack anytime. So these are all called the very visceral organs. All organs of the body are important, but particularly these organs are the visceral organs. Even the lungs, the picture I couldn't bring it in this small image because the image
If I will put here and there, then it will become very congested and I cannot share it on the screen. So Anjan sir, can you share any other next slide? Yes, this is the thyroid gland I was talking about yesterday, right? I will come to it. Anjan sir, any other? You got in PPT? Any other images about the human body? Totally? Any? Telegram channel, I already put the same picture. Thyroid picture also I will put, because I wanted to talk about the thyroid gland, but then I got advice from our directors that first I need to give you the general A to Z organs, then one by one organ I can give you. So the very important thing, सबसे ज़्यादा important thing क्या है यहाँ पे? जो भी आपने organs देखे, whatever organs you saw there, and I think most of the times you heard in my lectures in YouTube channels and in many courses also you heard. The very important point is that why the organs have been pictured, has been put in a picture like a round, like oval shape, like a anda, because they are connected organs. Visceral organs, remember, are always connected organs. Remember this word. We call them connected organs. Connected means they're connected to each other. Connected to each other in many senses. For their working also, for their damage also, and for their repair also. This is a very important point for everyone to understand. Connected organs, what is the meaning of connected organs? They are connected to each other in many senses. For their working also, you can say for their surviving also, for their damage also, for their repair also. So if they're surviving by their connection. If they are working, they're working because of their connection. If they are damaged because of their connection. And if they would repair, they would repair because of their connection. These are called connected organs. That's why we call them visceral organ. That means the liver single cannot survive without the heart, the kidney, the stomach, the intestine. Same way, the stomach also cannot survive single without the liver, and without the intestine, without the duodenum. These are called connected organs. So generally, we call in medical science, I'll bring it in simple words, connected organs actually make a system. One more time, connected organs actually make a system. Because what happens is that connected organs which are connected to each other, together they will make a system and they will have a joining. So you're going to ask me, sir, what is the joining? Because the kidney and liver are not joined, they're not touching each other, but there is a joining. The joining is via the blood system and via the neurosystem. Remember one thing, the blood and the neurosystem are the two joining systems of our body, which joins each other systems or organs. That's why they are so important. If there is if there is a damage in the blood circulation, if there is a damage in the neurocirculation, somebody will have a stroke and somebody will have a paralysis. Somebody's neurosystem in the brain will be damaged, but maybe his legs are not working. Legs are so down, पैर इतना नीचे, brain इतना ऊपर, इतना distance है. फिर भी यहाँ पे न्यूरो डैमेज की वजह से पैर काम करना बंद कर सकता है. बिकॉज न्यूरो सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स द ब्लड सिस्टम. हिंदी में बोलते हैं नसा और नारी. नसा मतलब ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, नारी मतलब नर्व्स. ये दोनों जो सिस्टम है, इसको हम लोग इजी भाषा में बोल सकते हैं, दे आर द कनेक्टर और द कनेक्टिंग पॉइंट. दैट मीन्स इन दोनों सिस्टम के बगैर organs cannot survive. That means we cannot survive. Just remember this point. Just like how diabetes kills people. Diabetes means high blood glucose. High blood glucose because of insulin is something is wrong. Either low insulin or bad insulin. We know that topic very well. But if the blood glucose is so high, it means there will be accumulation of excessive glucose inside the blood. So when there is an accumulation of excessive glucose inside the blood cannot flow smoothly. When the blood cannot flow smoothly means blood from one organ to another organ cannot reach smoothly. Because the blood is carrying oxygen, it's carrying vitamins, it's carrying essential nutrients, it's carrying hemoglobin. That means it's carrying the immunity cells also. That means blood from one organ to another organ cannot reach smoothly and in time. Because the blood vessel is the connecting point. You can imagine, you can just say like this, between the two cities, take an example of two cities, between two cities which are 100-kilometer distance, the highway means the blood is the connecting point. If there is a jam, traffic jam, too much of traffic jam in the highway, that means the car will reach very late or maybe not able to reach if there is a strike.
But if the highway is very smooth, very in good order, nicely maintained highway, no jerking, toota mota kuch bhi nahi hai, not much traffic, no strike, no political protest, the car will reach smoothly and in time and will come back also in time. Imagine these two cities are two organs and the blood is actually the highway connecting the two cities. ये चीज को अगर आप समझ गए तो you can understand what is the importance of our blood circulation and neuro circulation. अब same way blood circulation को अगर if you take in this example, take the example of neuro circulation. What is the meaning of neuro circulation? Imagine you are in one city and another 100 kilometers there is another city. The blood is the going and coming point via the road. And between the two cities, right, between the two cities, there should be electricity transfer also. Because the electricity wires are connected between cities from the highway. You know very well. You have seen. आपने देखा होगा दोनों शहरों के बीच electricity, phone के wire, Wi-Fi के wire, they are connected. So imagine that connecting point is the neuro system and that transport point is the blood system. Are you with me? Are you able to get me? क्या आपको समझ में आया? If you're able to get me, just write message. Sir, I'm getting or not getting you can tell me. I'll explain again different ways because it's important for you to understand. These words you can use in common public. As a words of common public use करेंगे, everybody will understand. So just you can just think like this is that take example of two cities, दो छोटे-छोटे शहर या बड़े-बड़े शहर कुछ भी ले लीजिए जो 100 किलोमीटर्स के अपार्ट में है. तो जो रोड है जिसके वजह से सामान जा रहा है ना गाड़ी से, maybe truck, maybe from one city the truck is carrying rice. Just imagine this. Okay, yes, I'm with you. Okay, just imagine this example very clearly. आप example को सुनिए, then you write me yes sir, now I got the example, because you can give this example to anyone. So just imagine there is two cities. One city you are staying and another city one your friend is staying. The two cities are in 100 kilometer distance. दोनों city, दोनों ही शहर 100 kilometer distance में, 100, 200, 350 kilometer जो भी एक सोच लीजिए, 100 kilometer distance में. अब उस दोनों शहरों के बीच, between those two cities, rice transport should be there. Rice, चावल का transport, wheat transport, maybe coal transport, petrol in the tanker transport. So that maybe from your city to your friend, I'm your friend, and you are opposite side, you are sitting in your home, me and you is 100 kilometer distance, and I'm your friend. Just imagine this. So in my city, I have got, let's say I have got rice. In your city, you have got oil, cooking oil. Okay, we both is required because without cooking also you cannot cook food, without rice also you cannot eat food. So in my city, मेरे शहर में rice है, आपके शहर में cooking oil है, ठीक है? तो एक truck आप लेके आ रहे cooking oil मेरे लिए और मैं एक truck rice भिजवा रहा हूँ आपके लिए. But that transport of the truck is happening where? On the highway. So if the highway means the road of the highway is smooth, no traffic, no tuta muta, no jam, right? No traffic, no political protest. Hey, रोक दो, मत जाने दो गाड़ी. Nothing like this is there. Means your truck will reach to my city with the cooking oil in time. My truck will reach to your city with the rice in time. And again, we will bring back our things and again we'll transport our things. That means the interconnectivity of essential goods between my city and your city will take place in time without any trouble. That means my city will always get my requirement, that is rice, in time. Your city will always get cooking oil, their requirement in time. हर दूसरे का requirement पूरा कर रहे हैं. Just imagine that this is, just imagine I am the one city and you are the another city. So just imagine the road. आपने road का example clear हुआ? Are you now clear with the road example and the truck transport? Then I will give you the other example. आप सब लोग रोड का ये ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल से क्लियर हुए हैं तो लिखिए हाँ सर क्लियर हुए, तब मैं दूसरा वाला एग्जांपल दूंगा. आर यू क्लियर अबाउट द रोड एग्जांपल? मैंने क्या बोलने का कोशिश किया है, मैं आपको क्या पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पहुंचा पाए. व्हाट इज द ब्लड, माने व्हाट इज द टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम. So between the my city and your city, the highway is so important so that the trucks can bring in and take in essential goods timely, smoothly and sufficiently. One more time, timely, smoothly and sufficiently. Clear? ये तीनों वर्ड याद रहेगा. दोनों essential goods का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? Right? Timely, smoothly and sufficiently. Time to time, बहुत बढ़िया, smoothly and sufficiently मतलब पूरा एकदम हो रहा है. अब दूसरा एग्जांपल सुनिए. जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है एसेंशियल गुड्स का ट्रांसपोर्ट होना, तो मुझे आपसे 2 ट्रक कुकिंग ऑयल चाहिए और आपको मुझसे 3 ट्रक राइस चाहिए. ऐसा ले लीजिए.
तो मैं और आप 100 किलोमीटर डिस्टेंस में है, मैंने अगर बोला तेल दो बोल के, आपको सुनाई नहीं देगा। आपने वहां से बोलो चावल दो, तो मुझे भी सुनाई नहीं देगा। हम लोग 100 किलोमीटर डिस्टेंस में। इट मीन्स अब हम दोनों के बीच कनेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? हमारा कम्युनिकेशन का। हमारा कम्युनिकेशन का कनेक्टिंग पॉइंट होगा फोन, चाहे वो लैंडलाइन हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे व्हाट्सएप हो, कुछ भी हो, मोबाइल हो, लैंडलाइन हो, व्हाट्सएप हो, स्काइप हो, एक जूम में चलो आ जाओ यार बात कर लेते, क्या हमें चाहिए, क्या चीज चाहिए। इट मीन्स द नेटवर्क। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे और आपको अगर कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वन मोर टाइम, मुझे और आपको क्या करना है? कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आया समझ में? इट मीन्स मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है? भाई मुझे 2 ट्रक तेल दे दो यार। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? भाई मुझे आप 3 ट्रक चावल दे दो। मीन्स आपका इंफॉर्मेशन वो है, मेरा इंफॉर्मेशन ये है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें क्या करना है? कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन के लिए फोन, लैंडलाइन, व्हाट्सएप, जूम, कुछ भी कीजिए, बट इट मीन्स आपको नेटवर्क चाहिए, मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क मीन्स तार। मोबाइल नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं वो टावर से, और बिजली कनेक्टेड होता है तार से। बिजली भी नहीं होगा तो मोबाइल या लैंडलाइन चार्ज नहीं होगा, बंद हो जाएगा, राइट? और टावर भी नहीं होगा तो कनेक्टिविटी नहीं आएगा। मैं हेलो हेलो चावल बोलूंगा, आप दाल भेजोगे। मैं तेल मांगूंगा, आप गेहूं दोगे। इट विल बिकम रॉन्ग। दैट मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, राइट? उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स होगा। सो पहले गुड्स के लिए, कोई भी गुड्स के लिए, चावल और तेल के लिए हम दोनों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद रोड में गुड्स ट्रांसफर होगा। क्लियर है आप? आर यू क्लियर? अंजन सर, आर यू गेटिंग मी? बिकॉज आप भी एग्जांपल्स के यूज कर सकते हैं। तो पहले हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन ऑफ गुड्स, उसके बाद क्लियर कम्युनिकेशन होने के बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स रोड में करना पड़ेगा। अब फाइनल सुन लीजिए। सोचिए हम दोनों जो शहर है, मैं एक शहर हूँ, आप एक शहर है, हम दोनों अलग अलग शहर में, हम दोनों शहर is 2 different organs. Take the 2 cities are 2 different organs. The road is the blood circulation, blood vessels, and the truck are the blood. Blood vessels means the highway, right? Nas, and the truck is the blood. ऐसा सोच लीजिए. And the wire, what is the wire? Network wires, Wi-Fi, whatever आप बोल सकते हैं, नेटवर्क कनेक्शन इज द न्यूरो सिस्टम। फिर से बोल रहा हूँ, दोनों शहरों के बीच, अगर ये एग्जांपल सोचिए, दोनों शहर दो ऑर्गन्स है, दोनों के बीच का जो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स है, राइट? वो जो ट्रक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, वो है ब्लड। एंड जो हाईवे में आपका गुड्स का ट्रक चल रहा है स्मूथली, वो है ब्लड वेसल्स। वन मोर टाइम, क्या है? ट्रक क्या है जो गुड्स कैरी कर रहा है? गुड्स। और वो ट्रक का गुड्स क्या है? ब्लड। और ब्लड जिसके ऊपर चल रहा है, मतलब ट्रक जिस हाईवे के ऊपर चल रहा है, उसको बोलते हैं नस, मींस ब्लड वेसल्स। ओके? एंड जो माध्यम के द्वारा हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज द नेटवर्क ऑफ मोबाइल नेटवर्क और वाईफाई नेटवर्क, जो भी बोलेंगे, दैट इज द न्यूरो सिस्टम। दैट मीन्स हम दोनों ऑर्गन्स को कम्युनिकेट करना है तो हमें कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करना है तो न्यूरो सिस्टम चाहिए। एंड फाइनली हमें ट्रांसफर ऑफ एसेंशियल गुड्स करना चाहिए आपस में, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए। बिकॉज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इज हैपनिंग वाया न्यूरो सिस्टम, एंड फाइनली एसेंशियल मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन द 2 ऑर्गन्स इज हैपनिंग वाया द ब्लड सिस्टम। आया समझ में? आर यू एबल टू गेट मी? क्या आप लोग सब समझ पाए व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन? क्या है ब्लड सिस्टम और क्या है न्यूरो सिस्टम? द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टू बिटवीन द ऑर्गन्स? क्यों वो खराब होने की वजह से हमारा ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं? आर यू एबल टू? आप लोगों को समझ में आया? आर यू एबल टू गेट व्हाट ट्राइंग मी? या अगर आप क्लियर हो पाए तो इट मींस डेफिनेटली इस चीज को जस्ट याद कीजिएगा। यस सर, अंडरस्टैंड। बिकॉज जस्ट राइट कीजिए, फटाफट लिखिए। मैं इतना बोल रहा हूँ, आपको लिखने में इतना टाइम कैसे लगता है? कि हाँ हम समझ पाए सर या नहीं समझ पाए, जो भी आप बोल सकते हैं यार। सो इट मीन्स वेरी सिंपल is that you can understand the importance of the blood circulatory system and organ will not take place. And without the neuro system, the communication of information will not take place. So एक ऑर्गन को क्या सिग्नल भेज रहा है, दूसरा ऑर्गन को पता नहीं होगा और वो भेज भी नहीं पाएगा। और एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन को कोई जरूरतमंद चीज भेजना है ब्लड के द्वारा, भेज नहीं पाएगा।
It means दोनों organ out हो गए एक दूसरे से. That means the connecting point between the blood, between two organs or many organs, whatever you can say, is the blood and the neurosystem. That's why if somebody has a stroke, किसी को stroke आता है, brain stroke या heart stroke, they get paralysis. Why they get paralysis? Because the connecting points, that is the communication of information between the brain and the body, or heart and the body, is the nerve, and the transportation of essential things between the brain and the body or heart and the body is the blood. Both are blocked. If they are blocked, automatically there will be a stroke because पहुंचा नहीं चीज. Just like अगर मेरे शहर से आपके शहर में चावल पहुंचा ही नहीं 3-4 दिन, आपका शहर भूखा मरेगा. आपके शहर से भी मेरे शहर में कुकिंग ऑयल है ना, पकाने का तेल नहीं पहुंचा तो भी मेरा शहर कच्चा चावल थोड़ी खा के जिएगा. मेरे पास चावल है, ऑयल नहीं है, तो मेरा शहर आलू कैसे फ्राई करो, तो जल जाएगा फ्राइंग पैन में. तो फिर बॉईल कर करके खाना होगा, वो भी कोई खाना नहीं हुआ, रोज नहीं खा सकते. और अगर मैंने आपको चावल नहीं भेजा तो आप बस वही क्या बोलते कुकिंग ऑयल में आलू फ्राई कर करके खाएंगे, आप ज्यादा टाइम खा भी नहीं पाएंगे. It means we both need each other's things, but how we communicate that I need this and you need this, right? Via the neurosystem. How I get the things from remote, you can understand how organs work, because these are called visceral organs. So मैंने आपको picture दिखाया, these are strictly called the visceral organs, dear friends. याद रखें. आपको मैं I told you many times the liver is highly critical pressure because of external factors. अभी आप बोलेंगे sir external factors like somebody is smoking, lungs के बाद next affected liver. Somebody is drinking, lungs direct होता है, but पेन किलर खाया, मेडिसिन, आपने पैरासिटामोल खाया, आपने एक एंटीबायोटिक खाया, कहीं कोई भी टाइप का pharmaceutical medicines यूज करते हैं, उसका साइड इफेक्ट का 9, that means liver is a point of effect from external factors. External factors में bad habits, smoking, drinking, tobacco, nicotine, excessive meat, also very bad habit, red meat, excessive meat, bad habit, right? मेडिसिन से 90% साइड इफेक्ट लिवर का होता है. अब अगर एक सपोज आपको बुखार हो, आपको पता है पैरासिटामोल खाना जरूरी है, मुझे भी बुखार होगा खाऊंगा, आप भी खाएंगे, बट ज्यादा खाने से साइड इफेक्ट होता है, थोड़ा खाने से भी साइड इफेक्ट होता है. वी ऑल नो इट, बट स्टिल हमें लेना पड़ता है. अगर बुखार है, पेट में इन्फेक्शन होता है, एंटीबायोटिक लेना पड़ता है. जो साइड इफेक्ट बोलते हैं ना मेडिसिन का साइड इफेक्ट, तो सबसे पहले लिवर पे होता है. सो लिवर इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ डंपिंग ग्राउंड ऑफ साइड इफेक्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स. But liver is so strong, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 30-40 years, it's going to take that, pressure from external factors, but one day it cannot take the pressure anymore, and that time it will be critically damaged. That's why it's called visceral organ. Imagine about kidney जो आपने image में देखा. A very simple understanding में, the kidney is also very strong organ. You will tell me how is a kidney strong organ? Whatever you are drinking, whatever toxins are going inside our body, it is going out via the urine. Majority is going out via the urine. Maybe you go for stool to the bathroom once or twice a day. If you have a good bowel, if you don't have constipation, once or twice a day will go. More than that, nobody goes. But you go to urine maybe 7 or 8 times a day. So just imagine the volume of urine you are passing. All the things are passing from your urine. जो भी आप हिसाब करते constantly कुछ ना कुछ टॉक्सिन पास होता है. तो सोचिए कितना एक्टिव है, किडनी कितना हार्ड वर्किंग है. किडनी भी उतना ही एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ रिपेयर, दैट्स द टाइम किडनी शुड बी डैमेज्ड. वन मोर टाइम, आया समझ में? When external powers of damage will overpower the internal factors of repair, the kidney will be damaged. Yeah, kidney get damaged. Any organ will be damaged. Every organ will have a external factor to damage, internal factor to repair. इस चीज को याद
will have a they can actually that cannot stop the damage, but it will prevent the organ damage. H square कीजिए. That cannot stop the damage, but it will prevent the organ damage. There is two types of preventing a damage. One is that just take it this way. आपको किस तरीके से example दूं? Okay, I've got a good example. Example को सुनिए. सोचिए आप कहीं पे रहते हैं, कोई भी शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, और आपको पता है कि आपके उस एरिया में बहुत ज्यादा चोर हैं. There's a lot of thieves in your area. You know very well that okay, near my home in 10 kilometers proximity, a lot of thieves are there. बहुत सारा चोर है. अपने घर में चोरी होता है, ये सब होता है, बहुत सारा चोर होता है. So आपके पास अभी आपके घर में सोना है, चांदी है, पैसा है, essential things है, अच्छे टीवी, अच्छा फ्रिज है, तो चोर चोरी कर सकता है. मे बी आप जब घर से बाहर जा रहे हो 2-3 दिन के लिए कोई दोस्त के घर कोई काम पे, तो इट्स चांसेस हो सकते हैं चोरी करे. तो आपके पास दो उपाय हैं जिसकी वजह से वाया व्हिच यू कैन स्टॉप द थेफ्ट. वो चोरी को प्रिवेंट रोकने के लिए आपके पास दो उपाय हैं. एक है कि जो चोर है, लेट्स से 5-6 चोर है उस एरिया में, लोग जानते हैं बट देखा किसी ने भी नहीं, बट पता है 5-6 चोर है, या देखा भी होगा लेकिन पकड़ा नहीं होगा. एक उपाय है कि उस चोरों को पकड़ने का काम आप करो या कराओ. दैट्स वन वे. मतलब जो चोर है उसको उस चोर की जगह में खत्म कर दो. दैट्स वन वे. या तो चोर रहे लेकिन चोरी ना होने दो, चोरी का उपाय खत्म कर दो. There's two ways. One more time I repeat. या तो आप चोर को ही खत्म कर दो, या तो आप चोरी को खत्म कर दो. चोर को रहने दो बट चोरी को खत्म कर दो. Either you stop the thieves or you stop the theft. Either you finish the thieves or you finish the theft. Thief मतलब चोर, theft मतलब चोरी. दोनों अलग वर्ड्स है, माइंड इट. बिकॉज चोर चोरी करता है, चोरी इज अ प्रोसेस, चोरी इज ए इंसान. वन मोर टाइम, चोर इज ऑब्जेक्ट मतलब इंसान, चोरी इज अ प्रोसेस. इट मीन्स आइदर आप जो चोर है उनको पुलिस के साथ मिलके, सोसाइटी पूरा मिलके पकड़ा दे सकते हो, खत्म हो जाएगा गेम. और अगर ये नहीं कर सकते लोग, तो कैसे भी चोरी ना हो, चोर रहे आसपास आपके घर के भी घूमे, लेकिन वो घर के अंदर आके चोरी ना कर पाए, वो वाला कुछ इंश्योर कर दो. आर यू विथ मी? ये दो चीजों से आपका मुनाफा हो गया. आपका मुनाफा है चोरी नहीं होने देना, आपका बचाव है भाई मेरे घर में चोरी नहीं होने देना. या तो चोर को खत्म करा तो चोरी का प्रोसेस को ही खत्म कर दो. तो इट मीन्स मैंने जो पहले वाला आपको बताया कि आप चोर को पकड़ लो, या तो पकड़ लो या तो पकड़ा दो, या सब मिलकर पकड़ो. अगर वो पॉसिबल नहीं है, इफ यू कैन नॉट कैच द थीफ, if you cannot catch the thief or cannot get him caught, if the thief is not coming in hand, let your things also not come in hand of the thief. आए आपके समझ में? अगर चोर आपके हाथ में नहीं आ रहा है तो आप कुछ ऐसा ही करेंगे ताकि आपके सामान भी चोर के हाथ में ना आए. आर यू क्लियर? आर यू गेटिंग मी? आपका तो काम हो गया ना. या तो आप मैंने इधर आप चोर को अपने हाथ में लेके आओ. अगर आप चोर को अपने हाथ में नहीं लेके आ पा रहे हो तो चोर को आपका सामान हाथ में ले आने से रोक लो. दोनों में से आइदर यू कैच द थीफ और यू स्टॉप द थीफ. दोनों ही आपके लिए मुनाफा है. इट मीन्स अब इसको ऑर्गन्स एंड डैमेज के साथ आते हैं. देयर इज सर्टेन फैक्टर्स व्हिच यू कैन टेक इट अवे फ्रॉम योर साइड. आप अपने आसपास से उसको आउट कर सकते हैं. दैट्स वन टाइप ऑफ फैक्टर. देयर इज सेकंड टाइप ऑफ फैक्टर्स व्हिच फैक्टर्स विल ऑलवेज स्टे. उस फैक्टर्स को आप भगा नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप उसको आपको हानि पहुंचाने से जरूर रोक सकते हो. कोई फैक्टर्स होते हैं जिसको आप आउट ही कर सकते हो, गेम से आउट कर सकते हो, सीन से आउट कर सकते हो. और कोई फैक्टर्स है जिसको आप आउट नहीं कर सकते हो, लेकिन उससे आपका प्रॉब्लम ना हो जाए वो चीज आउट कर सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फैक्टर्स आर दैट. फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि बाजार में मैं अभी नहीं जाऊंगा बिकॉज बाजार में बहुत भीड़ है, और भीड़ में पता नहीं कौन सर्दी है, खांसी है, छींक रहा है, कौन चोरी कर लेगा, किसके बीमारी है, तो आप बाजार नहीं गए. ठीक है, बाद में जाऊंगा. दैट्स वन वे. आप उसको उस फैक्टर, द फैक्टर ऑफ इन्फेक्शन और एलर्जी को आपने वहां पे बंद कर दिया. दूसरा है कि आपका घर मेन रोड में है, विंडो खिड़की खोलना ही खोलना पड़ेगा, राइट? लेकिन पोल्यूशन टू मच है. तो जब पोल्यूशन टू मच है तो आपने क्या कर दिया, पोल्यूशन को आपने रहने दिया. पोल्यूशन के अगर रहने दिया बट अपनी खिड़की विंडो बंद कर दिया. इट मीन्स व्हाट? एक हुआ कि आप फैक्टर को ही दूर भागा दे, भीड़ को आपने दूर भागा दिया. कैसे? आप खुद ही नहीं है. और दूसरा है फैक्टर को रहने दिया, धूल मिट्टी को रहने दिया. आप उसको भगा नहीं सकते हो, लेकिन आपने उसको अपने पास आने से भगा दिया. This is the two ways of prevention. People many times thinks, how will I prevent a disease? How is the disease prevented? First, you have to understand how the disease happens. If you like you today understood the organs, the connecting point.
द कनेक्टिंग पॉइंट जो होता है, लेट मी, मेरे को अपना काम करने दीजिए, आई विल कीप ऑन टेलिंग, इसमें मत लिखिए सर टेल अबाउट दिस, तो आप आके बोल दीजिए, यू कैन कम एंड टेल, अगर आपको बोलना है आप आके बोल दीजिए, आई विल गिव यू ऑन द स्क्रीन, मुझे अपना बोलने दीजिए. So it means if we could understand today the two organs which are the connecting point, the blood circulatory system, nervous system. So any organ has got factors of damage. Any organs के पास factors of damage होता ही होता है. We cannot actually prevent that factors of damage. ये मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ. Any organs will have, but certain factors of damage you can prevent, and certain factors of damage you cannot prevent, but you can prevent the damage from those factors. आप समझ पा रहे हैं, कुछ फैक्टर्स को आप प्रिवेंट कर सकते हैं और कुछ फैक्टर्स को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसका डैमेज से अपने आप को जरूर प्रिवेंट कर सकते हैं. टेक एग्जांपल, अभी लीवर का एग्जांपल में आते हैं. टेक एग्जांपल ऑफ द लीवर. लीवर का डैमेज क्या क्या चीज से होता है? अल्कोहल से होता है, स्मोकिंग से होता है, मेडिसिन से होता है. तीन चीज से होता है. मैंने तीन फैक्टर्स बोले थे आपको, अल्कोहल, टोबैको, निकोटीन आप प्रिवेंट कर सकते हैं. बट अगर कोई एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इंसान है जिसको बीमारी है बहुत साल से, बीपी है, हाई बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड शुगर है, थायराइड प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, माने बहुत सारे डिजीजेस है उसको, सो जरूर एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा होगा. ही विल बी टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन फॉर श्योर. वो इमीडिएटली उस एलोपैथिक मेडिसिन को नहीं छोड़ सकता. सो इट मीन्स एलोपैथिक मेडिसिन पे डैमेजिंग फैक्टर है, अल्कोहल निकोटीन पे डैमेजिंग फैक्टर है. अल्कोहल निकोटीन आप अपनी इच्छा से छोड़ सकते हो, अपने आप से दूर रख सकते हो, लेकिन मेडिसिन को इमीडिएटली एक बीमार आदमी फटाक से दूर नहीं रख सकता. अगर 15-20 मेडिसिन डेली खाते हैं, छोड़ देगा तो मर जाएगा प्रॉब्लम से. इट मीन्स अल्कोहल निकोटीन फैक्टर को यू कैन टेक इट फार, बट मेडिसिन यू कैन नॉट टेक इट फार, बिकॉज वो होना ही होना है. बट द डैमेज फ्रॉम दोज मेडिसिन को आप कम कर सकते हो या रोक सकते हो. मेडिसिन को तो नहीं रोक पा रहे, वरना आप मर जाओगे, लेकिन मेडिसिन की वजह से जो लिवर का डैमेज हो रहा था, साइड इफेक्ट, उसको आप रोक सकते हो. यू सी, मैंने आपको तीन फैक्टर बोला था, अल्कोहल निकोटीन, उसको बोलिए बैड हैबिट्स, ठीक, और दूसरा बोलिए मेडिसिन, बैड थिंग्स. मैं आपको दो वर्ड बोला, एक को बोलते बैड हैबिट्स, दूसरे को बोलते बैड थिंग्स. इंग्लिश में अगर बोलते हैं खराब हैबिट्स और खराब चीजें, तो खराब हैबिट्स मतलब अल्कोहल निकोटीन को बोला, खराब चीजें मतलब मेडिसिन को बोला, जो लिवर के लिए, मैं लिवर ओरिएंटेड बोल रहा हूँ. सो इट मीन्स अल्कोहल निकोटीन को आप खुद उससे दूर रह सकते हैं, बट मेडिसिन से आप दूर नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी मेडिसिन का इफेक्ट को, बैड इफेक्ट को लिवर से दूर कर सकते हैं. दिस इज द टू वेज यू कैन एक्चुअली हेल्प योर ओन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. एनीबॉडीज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वी कैन बी हेल्पिंग बाय दिस टू वेज, राइट? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये चीज को अगर आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, इफ समबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर, you could be able to explain anybody anatomy and physiology, because anatomy and physiology is very difficult and long strenuous chapter. एक एक organ के एक एक part, एक एक cellular name, Latin name, blood का name, muscle का name, आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा और आपको इतना जरूरत भी नहीं है. बट उतना जानिए जो पब्लिक नहीं जानता है. अगर आप उतना भी जान के, जो which common public don't know, if you know more than them and much better than them, the common public will be taking you as a guru, they will be following you, they will be admiring you, automatically they will be connecting with you. इस चीज को हमेशा अंडरस्टैंड करें. So now come, as I said, come let's organ wise. मैं आपको किडनी का बात बताएं. किडनी is a very very hard working strong organ. If it was not a strong organ, in a day 8 to 9 times you're going for urine. You drink water, immediately you go for urine. आप खुद सोचिए, eat food, immediately you don't go for stool. जाने की जरूरत नहीं होता है. मे बी सुबह एक बार जा रहे कोई आदमी, या दिन में 2 बार जा रहे, उससे ज्यादा नहीं, बट खा रहे कभी भी कुछ ना कुछ मंचिंग कर रहे हैं. बट घर में यूरिन जाना होता है अगर आपका किडनी, बिकॉज किडनी इज अ वेरी हाइपर एक्टिव ऑर्गन. But is an organ of it's very important detoxification होना. Detoxification process is a very important process. Otherwise, toxins are something which also we cannot avoid. Pollution आएगा ही आएगा. खाने में मिलावट है ही है. आपके बिना खाने के रहेंगे क्या? बाहर जाते हैं तो ढाबा, फास्ट फूड का खाना भी होता है. आप उसको नहीं कर सकते, बट उसको निकाल तो सकते हैं. Just see the options. आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते पूरी तरह, लेकिन आप उसको पूरी तरह निकाल तो सकते हैं. बोथ वे सेम. अवॉइड कर सकते हो, ग्रेट. नहीं अवॉइड कर सकते, निकाल तो सकते हैं. दैट मीन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट आवर किडनीज. वी हैव 2 किडनीज. इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. किडनी से ऐसे ऑर्गन्स हैं
स्पेशली मैंने बहुत फेवरेट एक अच्छा टॉपिक है, अगर आप टू किडनीज आते हैं, आप अच्छे से जानते हैं किडनीज आर टू इन साइड, two in number, whereas liver is one in number, stomach is one in number, kidneys are two in number, lungs are two in number, because they are like a pair of lungs and a pair of kidneys. तो क्या है दोस्तों कि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है, अगर किसी का एक पूरी तरह डैमेज भी हो जाए, लेट्स से किसी का एक किडनी 100% डैमेज हो गया और दूसरा किडनी 90% चल रहा है, वो इंसान पूरा जिंदगी भी जी सकते हैं। दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट किडनी। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हुआ, वो कोई मेडिकल साइंस का है, कैसे हुआ वी डोंट नो, आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द क्रिएशन ऑफ साइंस, द क्रिएशन ऑफ नेचर, वर्ल्ड, हमें पता नहीं कौन है, वी डोंट नो हु इज दैट, जिनका एक किडनी काम ही नहीं करता है, एक किडनी पूरी तरह डैमेज, उस आदमी को पता ही नहीं, वो 50-60 साल आराम से जी रहा है। बट डेफिनेटली व्हाई नाम्स, अभी बोलेंगे तो सर बढ़िया है, मेरी एक किडनी भी खराब है तो कोई बात नहीं, मैं लाइफ तरीके से जीऊंगा। वहां पे भी हम लोग, व्हाई प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर एंड प्रिवेंशन इज अ पार्ट। The reason, if a person goes for kidney function test once a year or does ultrasonography once a year, USG of kidney, prevention is a part of treatment। आप गए और आप बिंदास चल रहा है आपका, बट फिर भी आपने टेस्ट कराने के लिए गए, कितना लगता है? 1000 रुपए लगता है यार एक साल में, एक बार, या 1500 रुपए लगता है वो एब्डोमेन करने के लिए। आजकल तो बहुत स्कीम भी छोड़े गवर्नमेंट से, यू कैन गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स विद द स्कीम एंड गेट गुड डिस्काउंट एंड इट्स वेरी गुड आल्सो। सो व्हाट यू सी दैट यू वेंट एंड सी दैट, ओह माय ओनली वन किडनी इज वर्किंग। डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के बोला आपका मे बी लास्ट 10 साल से या पैदाइशी एक ही किडनी काम करता है। सो वो आपका फॉल्ट नहीं है, इट हैपेंड बाय डिफॉल्ट, वो आपका कराया हुआ नहीं, होता तो दोनों किडनी जाता था, एक किडनी नहीं कर रहा है काम बिकॉज इट इज हैपेंड बाय नेचर। सो इट मींस नाउ यू गॉट द इंफॉर्मेशन, oh, I am already short of one kidney and I have only one kidney, but this is also, you can say this is a problem of nature, but you are living well, with one kidney also you are living very well. This is also a gift of nature or gift of science. So now you are extra careful, you have become extra careful, so you will not have bad habits, you will not smoke, you will not drink, you will not eat meat, you will not take too much nonsense stress, you will be physically fit, you will not be overweight, all the things to prevent further kidney damage. You will not be overweight, you will be keeping a good weight, not underweight also, not overweight also. It means already these preventions you are doing is a treatment। जो आप प्रिवेंशन सोच रहे हैं ना, एक्चुअली में आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। खोया हुआ किडनी को वापस नहीं पा सकते, वह जो किडनी है ताकि वो खो ना जाए। दैट इज why we are teaching you all these things। आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे तो प्रोडक्ट का बात ही नहीं हो रहा है। आपने सुना होगा मैक्सिमम मेरे लेक्चर्स में, अगर मैंने 180 दिन, अभी 170 दिन मैंने लेक्चर चला, दिन में 2-2 3-3 भी हमने लेक्चर्स चलाए, प्रोडक्ट का बात हमने हार्डली 20% किया। वीडियोस भी मैंने यूट्यूब में डाल के छोड़ा है एवरीवेयर देयर, ताकि आप कभी भी कॉन्फिडेंस में देखिए। बट वी आर गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज व्हिच यू कैन बी यूजिंग टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट। अदरवाइज विदाउट नॉलेज यू विल बी सेलिंग आवर प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। With knowledge you will be promoting knowledge and product will be sold। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, सेल नहीं होगा। नॉलेज है तो नॉलेज को प्रमोट करेंगे, प्रोडक्ट सेल होगा। कौन सा करना है आप खुद सोचें, कि आप नॉलेज को प्रमोट कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल हो रहा है, या तो प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हो, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है। सो आप तो नॉलेज को प्रमोट करोगे। दैट्स व्हाई वी आर प्रमोटिंग योर नॉलेज। आपका नॉलेज को उन्नति कर रहे हैं, ताकि आप उस नॉलेज को आगे लेके जाएंगे तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आगे निकल जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे ओबीए में भी सर लोग आपको बेसिक प्रोडक्ट बोलते हैं। मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिया। अभी मैंने ओरिएंट्स इंटेलेक्चुअल्स चैनल में मेरा सब प्रोडक्ट के वीडियो पड़ा हुआ है, एनी टाइम को देख सकते हैं, जब कन्वीनियंट हो दे सकते हैं। आपको किसी को भेजना है भेज सकते हैं, डाउनलोड करके मोबाइल में रख सकते हैं, कम जीबी के। मुझे बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा पूरा मोबाइल का स्टोरेज खत्म हो गया। ये बात आपका सही है सर, बिकॉज मेरा भी खत्म हो जा रहा है बार बार उसको डाउनलोड करते गए। तो आई पुट इट ऑन यूट्यूब।
अब यूट्यूब में जब मर्जी कोई सिंगल प्रोडक्ट भी देख सकते हैं, ऑडियंस न्यूट्रोसिटिकल क्या, ऑडियंस क्या है, प्रोडक्ट वाइज क्या है. I put all of them. Why I didn't make all the time on the all products in one video, because somebody maybe only want to know natural vita, so he will only know natural vita. उसको सिर्फ नेचुरल vita जाने तो सिर्फ नेचुरल vita सुनेगा ना, उस समय वो ठीक हो जाएगा, फिर एंटीऑक्सीडेंट भी सुनेगा या नेफ्रोफिट भी सुनेगा. किसी को सिर्फ नेफ्रोफिट सुनना है तो ऑटोमेटिक वो देखेगा कि मेरे वाइफ के लिए एस्पोरोस भी चाहिए बोल के एस्पोरोस देखेगा. दैट्स व्हाई इंडिविजुअलाइज्ड वीडियो है. सो what we want जो हमारा मैनेजमेंट का या मेरा या हमारे पूरा टीम का जो whatever the philosophy we have is that we want you to be equipped with knowledge, because your knowledge driven attention creation is the strategy. KDAC is knowledge driven attention creation. Your knowledge will be the stimulating point, the activating point and the running point, the driving point. So ये जो आपने आज किडनी के बारे में सुना, whatever you heard about the kidney today, it's a very interesting fact. I mean, if in our country, इंडिया बोलिए, नेपाल में बोलिए, हिंदुस्तान में या नेपाल कहीं भी बोले, अगर कई करोड़ों लोगों को ये पता चल गया, कई करोड़ों लोग हैं जो या तो सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में चेकअप करा सकते हैं या पैसा देके 1000-2000 में चेकअप करा सकते हैं साल में. कई करोड़ों लोग हिंदुस्तान और नेपाल में, बट उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं, उनके पास ये नॉलेज नहीं, राइट. उनके पास नॉलेज नहीं कि एक किडनी से भी आदमी चल रहा है तो दूसरा किडनी को बहुत केयरफुली रखना चाहिए. अगर उनको पता होगा ना तो ऑटोमेटिकली जाकर टेस्ट कराएगा. अगर किसी को 2 किडनी ठीक है तो भी वो सोचेगा भाई मेरा किडनी ना खो जाए, तो भी आपको पूछेगा किडनी बचाने के लिए क्या है, बॉडी बचाने के लिए क्या, आपका एंटीऑक्सीडेंट निकल गया. और किसी का एक किडनी ऑलरेडी डैमेज है, दूसरा वाला 90% पे है, तो नेफ्रोफिट देके उसको 100% रखे, दूसरा वाला ठीक नहीं हो सकता बट पहला वाला जिंदा रहे. सी योर प्रोडक्ट आर मूविंग. सो एक्चुअली यू आर नॉट पुशिंग द प्रोडक्ट, यू आर पुलिंग पीपल टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. आर यू विथ मी? आप प्रोडक्ट को पुश नहीं कर रहे, ऐसा कुछ कर रहे, लोग आपकी तरफ, आपके प्रोडक्ट की तरफ पुल हो रहे. सो this is the very very important factor, that this type of knowledge is actually going to give you a smoother way. That's why मैंने वो पे टेलीग्राम में छोड़ के रखा है आपका इमेज, the human anatomy and physiology image. Anyone read my post last night? आज सुबह किसी ने पोस्ट पढ़ा about manufacturing, about maintenance, about expiry date? Anybody read the post? अगर किसी ने मेरा वो पोस्ट पढ़ा है तो यहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हैं. बट अगर वो पोस्ट को किसी ने, if somebody has read that post, it has got a very very inside meaning, very very internal meaning, right? Even मैं अपने अनजान सारे मार्केटिंग टीम को ये बोलूंगा, if my post are there, जो नहीं है उनको भी स्प्रेड करके दे सकते हैं. So अगर if somebody reads that post, वहाँ पे मैंने एक सिंपल चीज लिखा है, आई एम ट्राइंग टू कॉपी पेस्ट बट वो शायद नहीं हो पाएगा अभी जूम में फिर, बिकॉज मेरा मोबाइल बहुत ज्यादा हैंग करता है. इज दैट आई हैव रिटन ओनली वन थिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, उसके बाद उसको मेंटेनेंस भी करना. एवरी लिविंग थिंग हैज, करेक्ट, एवरी लिविंग थिंग हैज ए, नो सॉरी आई डोंट रीड, ओके नाउ इट्स समबडी हैज पुट, सोना हैज पुट इट, राइट. सो आप उसको पढ़ सकते हैं. इसका एक सिंपल मतलब है, अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, जस्ट ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड कराते हैं. एवरी लिविंग थिंग हैज ए यूटिलाइजेशन इन दिस वर्ल्ड बट विद एक्सपायरी डेट. इसका मतलब हर एक जिंदा चीज का यूटिलाइजेशन है, काम है इस दुनिया में, बट उसका एक एक्सपायरी डेट भी है, मतलब एकदम जाने का भी टाइम आ गया. ऑर्गन्स, आपका हार्ट, आपका किडनी, आपका लिवर क्या है, आपका पैंक्रियास क्या, लिविंग थिंग में है ना, जिंदा चीज है ना. ब्लड दौड़ रहा है, ऑक्सीजन दौड़ रहा है, जिंदा चीज है. प्लांट भी क्या, जिंदा चीज है. आपका ऑर्गन्स को इसमें कंसीडर कीजिए, जिंदा चीज है. एवरी लिविंग थिंग, आपका हार्ट या पैंक्रियास का एक यूटिलाइजेशन है. क्यों वो जिंदा है, मतलब उसका एक यूटिलाइजेशन, उसका एक काम है इस दुनिया में, मतलब आपका बॉडी को सपोर्ट करना. बट उसका एक एक्सपायरी भी एक दिन हो जाएगा, बुढ़ापे में एक दिन हम लोग मरेंगे, जाएगा, ये इसका मतलब. उसके बाद देखिए what I wrote is that manufacturing, then maintenance, then disturbance, then endness is what any living thing is from inside and outside. क्या हुआ, पहले मैन्युफैक्चर हुआ, हम एक सेल से बने थे. you remember embryo, yeah, the sperm and ovum mix, embryo, उसके बाद सेल मल्टीप्लिकेशन, ऑर्गन हुआ, ऑर्गन टिश्यू हुआ, ऑर्गन हुआ, सिस्टम हुआ. इट मीन्स हर कोई इंसान, everyone will actually, every organ started from one cell. So it means every organ got manufactured. When we were inside our mother's womb, जब हम अपने माँ के कोख में थे, तब हमारे ऑर्गन्स का दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था. मैन्युफैक्चरिंग मतलब बन रहा था, लिवर बन रहा था, किडनी बन रहा था, ब्रेन बन रहा था, सेक्सुअल ऑर्गन्स बन रहा था, आंखें बन रहे थे. दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था जब हम अपने माँ के कोख में थे. इट वॉज द मैन्युफैक्चरिंग. क्योंकि जब हम पैदा हुए ना, सब ऑर्गन्स लेके पैदा हुए. जैसे बड़ा होते कि ऑर्गन का साइज बढ़ा, ऑर्गन्स का नंबर नहीं बढ़ा. वन मोर टाइम,
जब हम पैदा हुए थे ना, when we were born, हम जो ऑर्गन लेके, आज आपके पास जो ऑर्गन है वही ऑर्गन लेके हम पैदा हुए थे। ऑर्गन्स का नंबर आपके पैदा होने के बाद नहीं बढ़ा, साइज बढ़ा, नंबर नहीं बढ़ा। रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ए थिंग एंड द साइज ऑफ ए थिंग। सो ऑर्गन्स जितने थे उतने ही लेके हम पैदा हुए हैं जो आज हमारे पास है, बस साइज में हार्ट बढ़ा, लिवर बढ़ा, किडनी बढ़ा, इंटेस्टाइन बढ़ा, स्टमक बढ़ा, 6 ऑर्गन्स बढ़ा, आपके स्किन बढ़ा, सब बढ़ा। दैट्स कॉल्ड ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स। सो द फर्स्ट प्रोसेस को क्या बोला मैंने? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गन्स। उसके बाद क्या हुआ? हमारा ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या करना चाहिए? कोई भी सामान को मेंटेन करना चाहिए, मेंटेनेंस। दैट्स व्हाई से आई रीड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस अगर कर रहे ठीक से तो डिस्टर्बेंस कम होगा। इवन मेंटेनेंस ठीक से करने के बावजूद भी समय के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ, कंडीशन के साथ साथ, बहुत सारे रीजंस के साथ साथ डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पहला क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आवर ऑर्गन्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ऑर्गन्स होने के बाद क्या हुआ दोस्तों? उसको क्या करना चाहिए? मेंटेनेंस। उसके बावजूद भी या समय के साथ साथ क्या होगा? डिस्टर्बेंस। लास्ट में क्या लिखा है? एंडनेस, खत्म। ऑर्गन्स डेड मतलब वी आर डेड। पैंक्रियास डेड होता है ना, पैंक्रियास फेलियर होता है ना लोगों का, पैंक्रियास खत्म, वो काम ही नहीं करता है, राइट। काफी लोगों का लिवर फेलियर होता है ना, खत्म। किडनी फेलियर होता है ना, डायलिसिस में क्यों जा रहा है, किडनी कंप्लीटली फेलियर, तो नया किडनी लगाओ ट्रांसप्लांट, या तो वो पुराना किडनी मर चुका है। हार्ट में पेसमेकर लगाते हैं, यू नो पेसमेकर, व्हाई पेसमेकर इज पुट? because of the heart is completely damaged, it cannot work in its own, it cannot produce the electricity on its own, so heart is damaged, right? So it means what? Simple is that endness. Endness means finished, खत्म, organs खत्म या हमारा स्टोरी खत्म। so याद रखिए, कोई भी एक ऑर्गन का मैन्युफैक्चरिंग होता है सबसे पहले, जो हम व्हेन वी वर इन मदर्स होम ये हुआ था, उसके बाद उसका साइज बना, मतलब ग्रोथ हुआ है, उसके बाद वी हैव आवर ड्यूटी इज मेंटेनेंस। एंड पैरेलली जैसे हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, पैरेलली इस दुनिया के फैक्टर्स डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। वन मोर टाइम, मेंटेनेंस करना किसका ड्यूटी है? किसका ड्यूटी है? हमारा, हमारा, आवर। डिस्टर्बेंस करना किसका काम है? एक्सटर्नल फैक्टर, दुनिया का। होगा ही, बाहर का खाना पीना भी डिस्टर्बेंस है, पोल्यूशन डिस्टर्बेंस है, कोरोना डिस्टर्बेंस है, फ्लू डिस्टर्बेंस है, एलर्जी डिस्टर्बेंस है, इन्फेक्शन डिस्टर्बेंस है, अल्ट्रावायलेट रेड भी डिस्टर्बेंस है, वेदर चेंज भी डिस्टर्बेंस है, टॉक्सिन्स डिस्टर्बेंस है, कोल्ड ड्रिंक्स डिस्टर्बेंस है। मतलब पूरा दुनिया का काम क्या क्या है? डिस्टर्बेंस। हमारा काम क्या है? मेंटेनेंस। आर यू विथ मी? ऑर्गन्स के तरफ दुनिया का काम क्या है? डिस्टर्बेंस। हमारा काम क्या है? मेंटेनेंस। Every sphere or every day of our life, there is a war or a fight between the maintenance and the disturbance. बस इसको याद रखिए। If you remember this and if you spread this message, I can tell you, मैं लिखूंगा फिर से उसको इंग्लिश में। आप अगर, बहुत लोग मुझे पूछे थे सर आपने हिंदी में फिर से नहीं लिखा, देखिए मैं आपको सच बोलूं, वो चीजों का अगर मैं हिंदी में डालूं ना, पूरा देसी लगेगा सुनने में। इसलिए मैं, अगर विदेशी चीजें हैं उसको एकदम देसी में लगा देंगे ना, वो मजा नहीं आएगा सुनने में। दैट्स व्हाई मैंने नहीं लिखा था। मैंने उसको पहले पेन से लिखा हिंदी में कुछ लिखने के लिए, मैंने देखा वो मैच नहीं हो रहा है, मेडिकल नहीं लग रहा है। आप में किसी को भेजोगे तो सोचेगा यार कौन सा देसी देहाती आदमी ने भेजा यार, ऐसे करके लोग सोचेगा। दैट्स व्हाई मैंने उसको हिंदी में नहीं लिखा, बिकॉज इट विल नॉट मेक इम्पैक्ट। आप भी किसी को देंगे हमारा डॉक्टर ने भेजा है, अरे तुम्हारा डॉक्टर क्या देसी देहाती है क्या, कैसा भाषा लिखा, इट विल नॉट कम। वो चीज इंग्लिश का डायरेक्ट हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं आता। मैंने खुद बहुत ट्राई किया है, कल रात को 1 घंटा बैठ के मैं लिखने में ट्राई किया, इट डिडंट कम, प्रॉपर वोकैबुलरी नहीं आ रहा था। सो वो इंग्लिश में रहेगा, बट मैं उसको आपको हमेशा एक्सप्लेन करूंगा मैंने पोस्ट को, ताकि आप किसी को अपने भाषा में एक्सप्लेन कर पाए। सो रिमेंबर, every day of our life, there is a war, means fight between maintenance and disturbance. मेंटेनेंस करना हमारा ड्यूटी है, डिस्टर्बेंस करना दुनिया का काम है, ड्यूटी है। सोचिए, उसका बाहर वाले का ड्यूटी है डिस्टर्बेंस, अंदर वाले का काम है मेंटेनेंस। अब बोलेंगे बाहर वाला मतलब सर इंसान भी हमारे ऑर्गन को डिस्टर्ब कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बस मैं बहुत उसको ओपन लिख नहीं सकता हूँ, कंट्रोवर्सी में आ जाऊंगा, बट मैं आपको जरूर बोल सकता हूँ। और अगर आप एग्री करते हैं मैंने जो बोला, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे चैट में लिखिए। मैं जो अभी बोलने वाला हूँ अच्छे से सुन लीजिए, लिसन टू इट केयरफुली। तो अगर बोले एक्सटर्नल फैक्टर्स, सो इफ समबडी आस्क मी व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स सर, external factors is radiation, pollution, infection, fast food. That is, who produced it? Human being. Who produced? किसने बनाया? फैक्ट्री किसने बनाया? ह्यूमन बीइंग। कोको कोला किसने बनाया? ह्यूमन बीइंग। फास्ट फूड किसने बनाया? ह्यूमन बीइंग। ढाबा में कचरा तेल किसने डाला? ह्यूमन बीइंग। गाड़ी से करके धुआं किसने निकाला? ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब क्या है? The external factors of disturbance is made by human being, and human being is also the external factor of disturbance directly.
ह्यूमन ने इंसान ने कोई एक चीज बनाया है जिसके वजह से हमारे को डिस्टर्ब हो रहा है, वो भी डिस्टर्बेंस है। और ह्यूमन बीइंग खुद हमें डायरेक्टली हमारे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर रहा है, वो भी डिस्टर्बेंस है। तो ह्यूमन बीइंग ने ज्यादा मोबाइल, इंसान ने ज्यादा मोबाइल बनाया, ज्यादा रेडिएशन हुआ, ज्यादा लैपटॉप बनाया, ज्यादा रेडिएशन हुआ, वो ज्यादा गाड़ी बनाए, पोल्यूशन हुआ, ज्यादा रेडिएशन हुआ। वो सब ज्यादा ऑटोमेटिकली हो रहा है। दैट्स ए इनडायरेक्ट वे हमें हमारे ऑर्गन्स डिस्टर्बेंस। बट दिस अ डायरेक्ट वे आल्सो। एक्सटर्नल फैक्टर्स में इक्वली ह्यूमन बीइंग्स मतलब इंसान भी आते एज द रीजन ऑफ डिस्टर्बेंस। आप बोलेंगे हाउ कम सर, हाउ ह्यूमन बीइंग्स आते? ओके, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर दीजिएगा फटाक से। स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस। स्ट्रेस इज क्रिएटेड बाय whom? कंप्यूटर, मोबाइल, कोल्ड ड्रिंक और ह्यूमन बीइंग? किससे? स्ट्रेस, तनाव, STRESS, स्ट्रेस इज क्रिएटेड बाय whom? कौन स्ट्रेस को क्रिएट किया है? आपके पास एक फोन आया, तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो, आपके बॉस ने फोन किया, तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो, फोन आया, फोन के द्वारा इंफॉर्मेशन आया, बट उस इंफॉर्मेशन को क्रिएट किसने किया, डिलीवर किसने किया? माध्यम फोन है, बट आया किसके द्वारा? स्ट्रेस क्रिएटर इन दिस वर्ल्ड कौन है? कुत्ते हैं, बिल्ली है, पेड़ है, फोन है, मोबाइल है? आई डोंट थिंक, ह्यूमन है, वी ह्यूमंस। सो एक्चुअली जब आप एक्सटर्नल फैक्टर का बात करते हैं ना दोस्तों, external factor of disturbance, human beings we also are. One is self stress creation, but self stress creation outside stress से हो रहा है। It means the stress is one of the biggest factor of disturbance. हमने बहुत लेक्चर इसके ऊपर किया, मैंने बहुत पोस्ट भी डाला है। So it means जब हम external factor of disturbance बोलते हैं, one is the human made and one is the human direct. दोनों चीजें याद रखिएगा। जब हम बोलते हैं external factors, कोई मुझे पूछता है ना सर external factor of disturbance क्या क्या है सर? One is called human made, तीन टाइप होते हैं। वन इज कॉल्ड नेचर मेड, वायरसेस, बैक्टीरिया सब नेचर से पहले से है, हमारे से इंसान आने से पहले से भी है और हमेशा रहेंगे, दैट्स कॉल्ड नेचर मेड। सेकंड इज कॉल्ड ह्यूमन मेड, पोल्यूशन, बिग पॉपुलेशन, एलर्जी वाला चीजें, फास्ट फूड, प्रिजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सो वन इज नेचर मेड, वन इज ह्यूमन मेड, वन इज ह्यूमन डायरेक्ट। तीन फैक्टर ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर आवर ऑर्गन्स। हमेशा लाइफ टाइम इस भाषा को याद रखिएगा, बिकॉज ह्यूमन मेड चीजों ने आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया, पोल्यूशन, रेडिएशन, एलर्जी, ये सब पेट का प्रॉब्लम, और ह्यूमन ने स्ट्रेस क्रिएट किया। और नेचर ने कुछ ऐसे पदार्थ क्रिएट किए जो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब 10,000 साल पहले भी करते थे, अभी भी करेंगे, बाद में करेंगे, हम उसको ये नहीं कर सकते। सो इफ वी अंडरस्टैंड द फैक्टर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर ऑर्गन्स, वी विल वेरी वेल नो that how to overcome these factors of disturbance. So remember, our human body is a fight between maintenance and disturbance. One more time, our human body is a fight between maintenance and disturbance. Maintenance और disturbance के बीच ही organs बीच में बैठा हुआ है। Maintenance ज्यादा होगा, disturbance को हरा देगा, क्योंकि disturbance को पूरी तरह आप रोक नहीं सकते हो, वो आएगा या आएगा, लेकिन वो जाएगा कि रहेगा, वो maintenance के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज डिस्टर्बेंस ऐसा आ रहा है, सोचे हाथ से, बट मेंटेनेंस ऐसे खड़ा है, आते धुम करके ऐसा मार के उसको भगा देगा। बट डिस्टर्बेंस ऐसा आ रहा है और मेंटेनेंस ऐसे लुढ़का बैठा है, तो आके सीधा ऑर्गन्स को मार देगा। यहाँ पे ऑर्गन है, सोचे मेरा नाक जो है यहाँ पे ऑर्गन है, मिड पॉइंट, यहाँ से क्या आ रहा है, मिड पॉइंट है मेरा नाक। सोचे मेरा नाक के ऊपर आ रहा है हेवी डिस्टर्बेंस, बट यहाँ पे भी है हेवी मेंटेनेंस, इससे भी पावरफुल मेंटेनेंस, आते ही इसको यहाँ से भगा देगा। बट मेरा नाक है यहाँ पे टारगेट पॉइंट, यहाँ पे आ रहा है हेवी डिस्टर्बेंस और मेरा ऐसा लुढ़का बैठा मेंटेनेंस, आके अटैक कर देगा, that means it will be damaging. So every organ is between the fight of the maintenance and the disturbance. इस चीज को याद रखिए। पहले होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गन, उसके बाद होगा मेंटेनेंस एंड डिस्टर्बेंस का रेशियो। ऑटोमेटिकली एक टाइम होगा एंडनेस, एक होता है नेचुरल एंडनेस, एक होता है कॉज्ड एंडनेस, मींस बिग डिजीजेस, एक्सेसिव फैक्टर्स ऑफ डैमेज ज्यादा आने पे रिपेयर क्या और मेंटेनेंस का फैक्टर्स कम आने से, डिस्टर्बेंस ज्यादा आने से ऑटोमेटिक डिजीज जल्दी होगा और होगा। बट एवरीबॉडी विल गो ऑन टाइम, सो एवरीबॉडी विल कम ऑन टाइम, विल गो ऑन टाइम। एक जो फिलोसॉफी है, काफी टाइम लोग इसको स्पिरिचुअल सोचते हैं, स्पिरिचुअल, बट इट इज अ साइंटिफिक। ये चीज को याद कीजिए, दिस इज इक्वली साइंटिफिक, राइट। आप जैसे लिख रहे टू मेंटेनेंस व्हाट ओरिएंट्स प्रोडक्ट्स टू बी टेकन, टू मेंटेनेंस के लिए ओरिएंट्स के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, प्रोडक्ट सेल करेंगे, गुड, यस, बिल्कुल, बिकॉज मेंटेनेंस इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। लोग सोचते हैं मेंटेनेंस इज ओनली प्रिवेंशन, दे आर रियली रॉन्ग।
जो ये सोचता है ना पूरी तरह रॉन्ग है दोस्तों। मैं आपको बोल रहा, अगर मैंने जो आज 45 मिनट्स में आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का दिखा, अभी लास्ट 15 मिनट में आपको मैंने एक चीज बताया। पहले 15 मिनट में ऑर्गन्स का कनेक्टिंग पॉइंट बताया, फिर किडनी का बात जो आपको बात है फैक्ट को बताया। कोई अगर इतना भी समझ जाए और किसी को आप इतना भी समझा दो, उसके बाद भी अगर वो बोलते हैं नहीं मेंटेनेंस तो सिर्फ प्रिवेंशन है, जब प्रॉब्लम होगा करेंगे, तो उसको छोड़ दीजिए। बट मैं आपको बोलूंगा, अगर आपने 10 को अच्छे से समझाया, 7 हाँ करेंगे आपके साथ और 5 आपसे प्रोडक्ट लेंगे, 3 ना करेंगे, क्योंकि ये होगा ही, आप उसको 10 में से 10 आपको पूरी तरह साथ नहीं देंगे। अगर आपने 10 को पूरी तरह एक्सप्लेन किया, if you explain the 10 about this maintenance and disturbance thing, connecting point, kidney examples, जो human anatomy organs, connected organs, and automatically out of 10, 7 will say yes, fully agreed, and 5 will take your product. Among the 5 who will take your product, 3 will repeatedly take your product. Out of the 3, 1 or 2 will do network like you. आप ये है रेशियो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसको याद रखिए, इसलिए कभी बहुत ओवर इंथुसियास्टिक भी नहीं होना चाहिए, अंडर भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने 10 को इतना ही सिखा पाए, इतना ही टीच कर पाए जो हमने अभी सीखा है, बार बार रिपीट करूंगा, मैं डाल भी दूंगा टेलीग्राम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, सो यू कैन रीड एनी टाइम। अगर 10 को आपने ये चीज सिखाए, 10 में से 7 फुल्ली आपके साथ एग्री करेगा, हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही है। उसमें से 5, उस 7 में से 5 आपसे प्रोडक्ट लेगा। फिर सब लोग प्रोडक्ट पूछेंगे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप प्रोडक्ट को ऐसे लेके आओगे। प्रोडक्ट 7 में से 5 लेगा, 5 में से 3 रिपीटेडली सेकेंड टाइम भी लेगा। 5 पहली बार लेगा, 5 में से 3 सेकेंड टाइम लेगा, और 3 में से 1 फुल्ली नेटवर्क करेगा आपके जैसा बनेगा। अगर ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, इट मीन्स आउट ऑफ द 10, जैसे अनजान सर एक बार बोला था ना सुबह, अच्छा लगा था मुझे सुन के कि कस्टमर को और बिजनेस प्रोस्पेक्ट को, लोग बिजनेस प्रोस्पेक्ट को बिजनेस लेके टारगेट कर रहे हैं, बोलते बिजनेस हो नहीं रहा है। आप खुद सोचिए, बिजनेस किससे करेगा? हेल्थ एंड प्रोडक्ट्स है ना, हेल्थ एंड हेल्थ प्रोडक्ट, हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोडक्ट दोनों ही नहीं दे रहे, तो बिजनेस किससे करेगा? क्या जाके बेचेगा? स्कीम, ये कोई स्कीम है क्या? स्कीम नहीं है ना, इट्स अ हेल्थ प्रोडक्ट, हेल्थ एंड इट्स प्रोडक्ट। सो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग में अगर दोस्तों माना चाहे, वी कैन रियली गेट दिस पॉइंट क्लियर, इज दैट आप सोच रहे ना, मेरा नीचे एक बहुत अच्छा बिजनेस प्रोस्पेक्ट, बिजनेस बढ़िया करे, पर उसका टारगेट पॉइंट यही होना चाहिए, वो बिजनेस इस प्रोडक्ट से करेगा और इस हेल्थ कॉन्सेप्ट से करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज व्हेन दैट prospect, your business prospect will understand the need of the market, the need of the country, the need of the society, the need of the community, the need of the situation. That's the time he will take audience to fulfill the need of everyone who has उसका business. It means he will understand बहुत लोगों को ये चाहिए, ये हेल्थ नॉलेज भी चाहिए, ऑटोमेटिकली नॉलेज पाने के बाद लोग ये प्रोडक्ट भी लोगों को चाहिए। हाँ, तो मैं बिजनेस करता हूँ। अगर एक बिजनेस प्रोस्पेक्ट को ये नहीं समझ में आया कि मैं बिजनेस को करूंगा किससे और कैसे, वो कब नहीं करेगा। दैट्स व्हाई होता नहीं। सो यू सी, आउट ऑफ 10 you educated, 7 agreed, 5 became customer, 3 became repeated customer, 1 became full time leader like you. तो 10 में से 1 लीडर, मतलब 10% लीडर क्रिएट हो रहा है, 50% कस्टमर क्रिएट हो रहा है, 30% रिपीटेड कस्टमर क्रिएट हो रहा है। इट्स अ ह्यूज रेशियो। अगर 100 के साथ अगर आप इंटरैक्ट करते एक महीने में, तो 10 लीडर क्रिएट होंगे, 50 कस्टमर क्रिएट होंगे। वही लोग, यही आपने जो क्रिएट किया, यही लोग आगे यही काम करेंगे प्रॉपर ट्रेनिंग से, तो बिजनेस आपका कहाँ तक पहुंच जाएगा। सो आपका एंड रीजन है, एंड इंटेंशन है बिग बिजनेस। You want to do a very big business, but you have to understand what is the starting point to go to the finishing point. So मेरे तरफ से इतना ही था, बिकॉज इससे ज्यादा दूंगा तो ओवरडोज हो जाएगा। बिकॉज ऑनलाइन है, ऑफलाइन में देता था 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, लोग पूरी तरह सुनता था। बिकॉज ऑफलाइन में देना अलग बात होता है, ऑनलाइन में देना अलग बात है। ऑनलाइन में आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ऐसा करके बैठे रह के मोबाइल में सुनना या लैपटॉप में सुनना, पूरी तरह कॉन्सेंट्रेशन नहीं आते हैं। लेकिन जब ऑफलाइन लोग बैठे रहते स्टेज में, वो जो बॉडी लैंग्वेज देख के, माइक का शोर शराब, एक दूसरे को देख के, अभी मैं आप सबको देख पा रहा हूँ, आप भी स्क्रीन में देख रहे हैं, बट जब मुझे पता है कि आदमी अकेला बैठा है तो कैसा फील करता है, लेकिन 500 लोग बैठा है, वो अलग एक एनर्जी फील होता है कि नहीं? ये तो हम लोग स्पीकर है, हम लोग जानते हैं व्हाट इज द साइकोलॉजी। एनीवे, थैंक यू सो मच। आज का जो ये टॉपिक था, आई होप इट्स इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड यूजफुल फॉर यू। आज मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करके लेके आता हूँ व्हाट वी सेड। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ ऑर्गन्स की इमेज देखे जो मोस्ट विसरल ऑर्गन्स है। विसरल ऑर्गन्स मींस व्हिच आर कनेक्टेड ऑर्गन्स एंड दे मेक अ सिस्टम। Visceral organs actually make the system. All organs are connected via the blood for transport of material,
and connected via nerves for transport of information. दो चीज ट्रांसपोर्ट होता है ऑर्गन्स के बीच, इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल, राइट? इंफॉर्मेशन मीन्स क्या करना है, कैसे कब करना है, और जो चीज जरूरत है लेना देने का काम ब्लड से होता है. रिमेंबर दो शहर, उसका रोड कनेक्टर और नेटवर्क कनेक्टर. न्यूरो रोड कनेक्टर आपका गाड़ी एंड आपका ब्लड सर्कुलेशन. उसके बाद हमने किडनी के ऊपर बात सुना, राइट? तो एक आज आपको एक टिप मिला, एक न्यू फैक्ट मिला एक किडनी का बात. तो इतना बोल के भी बहुत लोग डर जाएंगे, आपसे पूछेंगे, राइट? एंड मे बी टेस्ट भी कराने जाएंगे, कुछ इधर उधर मालूम पड़ेगा तो आपकी जरूर पूछेंगे. एंड लास्ट टुडे वी अंडरस्टैंड अबाउट हाउ इज द केडीसी वर्क, नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन कैसे वर्क करता है. डिस्टर्बेंस एंड मेंटेनेंस, ये दो वर्ड याद रखिए. डिस्टर्बेंस एंड मेंटेनेंस इज समथिंग which was there, which is there now, which will be always there. ये हमेशा चलता रहेगा. बस हमें इसके साथ ही हमें अपने आप आगे चलाना है, हमें पीछे नहीं रहना है. If what is a disease, अगर somebody ask me final definition, when the disturbance overpowers the maintenance, that is called disease. What is you can say what is organ power, with organ repair. When the maintenance overpowers the disturbance, is called organ repair. When the disturbance overpowers the maintenance, it's called organ damage. Organ damage means disease, and organ repair means prevention and good life. That's it. इतना याद रखिए. Thank you so much for all of you, my dynamic leaders. I pass over to Anjan sir. Okay, thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for your wonderful session, this training session. And also you explained the basics of the human anatomy and the physiology also. And also you very nicely you explained this one, that connection of neuro system and the blood circulating system between two organs, with giving some good example, and I think simple examples we can pass on to anybody. And then also if the leaders if they can deliver the awareness among the among people or any patients regarding this manufacture, this what sir had explained about manufacture, maintenance or disturbance, if we make that awareness among the people, then automatically the demand will increase and we can sell a lot of products with that. So once again, I'd like to thank Chakraborty sir for the wonderful session. And after that, as usual, I like to request each one of you to bring at least 2-3 guests in our this product training sessions, as well as in Hindi OBM and the English OBM. As we all know that our product training is it is held every day at 11 a.m. and also our Hindi OBM, which is also held every day at 6 p.m. And also we are having English OBM at 5 p.m. on alternate days, like 3 days in a week. That is on Tuesday, Thursday, and Saturday. And that today also we are having that English OBM. And that I want to share that in this today's OBM, English OBM, we are going to present this one about WhatsApp, about our in Epihome details, like how to log in Epihome, or how to share, how we can place order, or every details, or a lot of details we will share about Epihome in today's English OBM. So please bring a lot of new guests also in that program from your downline, so that they can understand how Epihome we can use our Epihome. And lastly, as usual, I will end up with a story by sharing a story. I will share it in Hindi only. So today I'm sharing. So एक गांव में 2 बच्चा था, मतलब एक था 5 साल का, एक था 8 साल का. तो वो दोनों बच्चा खेलते खेलते एक बार गांव से बाहर निकल गया, एक सुनसान जगह में निकल गया. निकलने के बाद क्या हुआ, वहां पर एक मतलब कुआं है, जो मतलब अभी यूज नहीं करते हैं, तो पुराना कुआं है. तो वहां पे खेलते खेलते क्या हुआ, वो 8 साल का जो बच्चा है वो गिर गया नीचे. तो अभी वहां कोई आदमी भी नहीं है उठाने के लिए. तो 5 साल का बच्चे ने क्या वो ही कोशिश करके उसका हाथ से पकड़ के कुआं से नीचे से निकल के बाहर लेके आ गया. तो आने के बाद वो दोनों आके अपना गांव में सभी लोगों को बोल रहे हैं कि आज ऐसा हुआ. तो गांव वाला पूछ रहा है कौन गिरा था कुआं में. तो वो लोग बोला कि नहीं, मैं 8 साल का जो बच्चा है उसने बोला कि मैं गिरा था. और तुमको निकाला किसने, बोला कि वो 5 साल का लड़का ने. तो कोई बिलीव ही नहीं कर रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही सोचते हैं एक छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चे को कैसे निकालेंगे कुआं से. कोई विश्वास नहीं कर रहा है. तब मतलब वो गांव में सभी लोग मतलब उनको बोल रहे हैं ऐसे मतलब अपना मन से कहानी बना रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं. तो वहां पर एक बुजुर्ग आदमी था. तो वो बुजुर्ग आदमी ने घर के अंदर से सुना, ये सब सुन के बाहर आके पूछा उन लोग से
कि क्या हुआ है, एक्चुअल सिचुएशन बताओ तो क्या हुआ है। तो पूरा कहानी उनको बोला, बोलने के बाद बुजुर्ग ने वो गांव वालों को बोला कि नहीं वो सही बोल रहा है, वो लोग वो जो बोल रहा है वो सही है, वो 5 साल के बच्चे ने ही निकला है उसको। तो गांव वाला उनको पूछ रहा है कि कैसे निकल सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बोला है नहीं ये पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पर कोई दूसरा आदमी नहीं था जो उसको बोल सके कि तुम नहीं कर पाओगे ये। क्योंकि यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको निगेटिव वाइब या निगेटिव पर्सन से हट के रहना है। आपको अगर कोई काम करने के लिए जाने से आपका कोई निगेटिव आदमी आपको बोल देंगे कि आपको कि ये तुमसे ये नहीं होगा, तो आपका जो होने का चांस था उसमें ऑलमोस्ट 60-70% आपका निगेटिव में चला गया, आपका नहीं हो। आप खुद भी सोच लेंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उस सिचुएशन में वो बच्चे के पास और कोई दूसरा सहारा नहीं था, तो वो खुद मेहनत किया, तो बच्चे को निकल लिया। वहां कोई दूसरा कोई नहीं था कि उनको बोलने के लिए कि तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे लिए संभव ही नहीं है। वही चीज कि हम लोग को भी हम हमें हमें कुछ भी अगर कहीं भी सक्सेस होना है तो वो निगेटिव बातें को दूर में रखना है, और वो सब मतलब कोई अगर बताते हैं तो हम लोग को अवॉइड करके वहां से निकलना चाहिए और पॉजिटिव रह के कोशिश करते रहना चाहिए। तो इसी के साथ ही मैं अभी मेरा ये सेशन वाइंड अप करना चाहता हूँ। तो शाम को 5 बजे और 6 बजे के सेशन में मिलेंगे, ओबीएम सेशन में। तो इसी के साथ आप सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ फिर से एक बार कि यहाँ आप लोग प्रेजेंट हुए आज। तो हैव ए नाइस डे एंड सी यू एट 5 PM और 6 PM। थैंक यू।